Hello dear students, you all are welcome in grade 8. Subject maths topic exercise 14.2 factorization using identity. Actually we have done last time in last sessions some of the examples that we have done, but still I am going to explain again because this is very important chapter. So now it may be repeated some of the sums, so don't worry. So it is good for you. So factorization using identity. Here you see a square minus b square. Now this is this is perfect square term. Here also perfect square term means which type of number will be there? 25, 1, 4, 9, 25, 64 like that. बराबर 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36 like that type of perfect square number will be there. So if two perfect square is there and in between minus sign is there, it will be factorized like a plus b, a minus b. So remember this identity. On this identity we are doing, you see, I'm just giving you some examples so at least you get the idea. 25x square minus 16y square. So trying to understand students, right? You are not going to learn by heart. Otherwise it will be a problem for you in your future. Means in 9th standard, in 10th standard. Okay, so 25x square minus 16y square. Now this first term 25x square, it is a perfect square. 25 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का. x स्क्वायर किसका है? x का. सो आप ऐसे रखो 5x होल स्क्वायर माइनस ये 16 किसका है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर. एंड दिस y स्क्वायर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y. So this is a, this is your b. A plus b 5x plus 4y and a minus b 5x minus 4y. This is the answer. Second, 49 minus x square. This is also perfect square. This is also perfect square. देखो यहां दोनों perfect square होगा ना तो ये possible है, otherwise no. तो ये 49 that we knew that it is a perfect square of 7 and x square means x. So 7 square minus x square 7 plus x 7 minus x. Another one, suppose 49p square minus 36 is there. Both are perfect square having minus sign. So use this identity 7p square minus 6 square 7p plus 6 7p minus 6. आपको पहचानना आइए राइट. You must know which type of sum is there. आपको पहचानना आना चाहिए. Correct. Now a raised to 4 minus b raised to 4 means a raised to 4 means a square of square. Can we write? Yes. Here b square of square. So a square minus b square means a square एक बार माइनस एक बार प्लस. यहाँ a इज इक्वल टू ए स्क्वायर है और यहाँ b इज इक्वल टू बी स्क्वायर है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो दो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन बीच में प्लस है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो पुट एज इट इज. लेकिन ये होगा अगेन a प्लस बी, ए माइनस बी. सो a रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4 में एक जो टर्म है उसका अगेन वो होगा फैक्टराइजेशन. तो लाइक दिस वे सपोज एग्जांपल में ये समझते हैं 25 a रेज टू 4 माइनस 121 b रेज टू 4. बोथ टर्म perfect square term. So this is the perfect square of 5a square whole raised to square, right? और ये 121 मीन्स 11 का स्क्वायर और ये b रेज टू 4 मीन b रेज टू 2 होल रेज टू 2. तो आप ऐसे लगा दो राइट. सो 5a स्क्वायर प्लस 11b स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 11b स्क्वायर. देखो यहाँ इसका यहाँ हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दिस बोथ आर इम्परफेक्ट स्क्वायर. वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 भी नहीं है. हाँ स्क्वायर है लेकिन ये भी होना चाहिए, नंबर भी अल्फाबेट दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. एक होगा एक नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा. इसलिए वही दिस इज द आंसर. इसके आगे कुछ नहीं चलेगा. नेक्स्ट वन ये देखो आप, यहां ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, अगेन चलेगा राइट. ऐसे लिख दो. यहां देखो ये अभी भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहां नहीं था लेकिन यहां है. देखो एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो वो आपको अगेन फैक्टराइज करना पड़ेगा. ये नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है. तो एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन 16 एंड एम प्लस 4 एम माइनस 4. करेक्ट. सो दिस इज द आंसर. Now next identity x plus a x plus b, right?
हम ये आइडेंटिटीज को फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस ए एक्स प्लस बी तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, इसके फॉर्म में आएगा। यानी हम इसका ये दिया है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आएगा। इसको फैक्टराइज करते तो ऐसे होगा, या उसको एक्सपांड करते हैं तो ये होगा, राइट। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी को एक्सपांड करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, उसको फैक्टराइज करेंगे, यू विल गेट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म आंसर, राइट। तो आप है ना, ये देखो नंबर वन, टाइप नंबर वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसके फॉर्म में दिया है आपको। अभी उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज करना है, राइट। इसके आगे हमने ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप फैक्टराइज किया, लेकिन यहाँ क्या था, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे। यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये नहीं है, बराबर। तो आपको कैसे इसको फैक्टराइज करने का, तो आप ये मेथड देखो। यू हैव टू डू 6 6, बराबर। 6 1 जा 6, यहाँ क्या है कोएफिशिएंट 1, 6 1 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर कि उसका एडिशन, ये प्लस यानी एडिशन, ये बराबर बराबर देखना, हाँ ये बराबर समझ लेना। 6 हैविंग सच अ फैक्टर दैट एडिशन इज, ये आपका आंसर, आंसर में क्या लाना है +5। तो 6 का कितना पॉसिबल फैक्टर है यहाँ, दिस इज 6 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये मेथड से हम करेंगे, है ना। 6 1 जा 6 होगा, 2 3 जा 6, बराबर। ये दो फैक्टर आते हैं। अभी हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो 6 + 1 करेंगे तो 7x, 2 + 3 करेंगे तो 5x। यहाँ जो x है तो यहाँ भी x लगा दो, करेक्ट। यहाँ जो भी है, सपोज यहाँ y है तो यहाँ y के फॉर्म में लगा दो। ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, बराबर। और ये बीच वाला टर्म जो है +5x, माइनस आंसर लाना है। तो +5x आंसर किस में आता है, 2 3 जा 6 में आता है। तो ये नहीं चलेगा इसमें, इसको मैंने क्रॉस किया है। ये आपके समझ के लिए है प्लस, बराबर। आपको समझाने के लिए इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये मिडल टर्म देखो 5x आ गया, बराबर। यहाँ 7x, तो ये काम नहीं लगेगा, ये काम लगेगा, बराबर। तो इसका हमें 5x का पार्टीशन किया, देखो मैंने लिखा पार्टीशन, PARTITION, पार्टीशन का क्या किया, पार्टीशन एक्स स्क्वायर, बराबर। ये 5x की जगह पे ये लिख दो 2x + 3x, ये रहा 2x + 3x, पार्टीशन किया, बराबर। +6, ये पहला सम है इसलिए मैं आपको बराबर समझा रहा हूं। बाद में आपको ये सब बताना नहीं कि इसका पार्टीशन किया है, आपको सिर्फ ये पॉसिबल फैक्टर्स बताना है, कौन सा फैक्टर्स काम आता है वो बताना है। और एडिशन यानी दोनों को प्लस साइन देने का, एडिशन, बराबर। एडिशन प्लस लाना है तो दोनों को प्लस साइन दो। इसके बाद जो आएगा उसमें एडिशन करना है, लेकिन यहाँ आंसर में साइन माइनस होगा तो दोनों को यहाँ माइनस देना पड़ेगा इसके बाद वाला सम में। फिर तो आपको मालूम है फैक्टराइजेशन बाय पार्टीशन मेथड, ये दोनों को पेयर कर दो, बराबर। इसमें से कौन सा x कॉमन निकला, x + 2, ये दोनों में आप कर दो, लाइन लगा। सो यहाँ फैक्टराइजेशन बाय पार्टीशन मेथड, x लगा दो x + 2 + 3 लगा दो x + 2, ओके। सो इसमें से x कॉमन निकला x + 2, इसमें से y, सॉरी 3 कॉमन निकला x + 2। ये देखो दोनों सेम हो जाने चाहिए, x + 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, x + 3 इज अनदर फैक्टर। तो देखो ये x + a x + b के फॉर्म में आ गया, जो हमारी आइडेंटिटी है, बराबर। अभी इसको हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये बराबर आंसर है। तो देखो ये x + a x + b यानी a = 2 एंड b = 3। लेट्स वेरीफाई, a = 2 b = 3। तो देखो ये x + a x + b क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लिख दो, ऊपर का जो आइडेंटिटी है क्या है वो फॉर्मूला, x² + a + b × x + ab। तो ये लगा दो x² + a + b × x + ab। तो x² a = 2 है, b = 3 है, बराबर। तो 2 + 3 5, 5x और 2 3 जा 6। देखो x² + 5x + 6 आ गया, x² + 5x + 6। तो ये आइडेंटिटी ऐसे इस्तेमाल होती है, राइट। तो ये यहाँ खत्म हुआ ये फैक्टराइजेशन का ये सम। लेट्स वी टेक अनदर सम, y² - 7y + 12, बराबर। ये रहा। So y² - 7y +
+12। पहले तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वाई स्क्वायर, ये है, लेकिन ये भी होना चाहिए, तो वो अगला वाला मेथड नहीं आएगा। तो 12 हैविंग सच अ फैक्टर, है ना, 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12 हैविंग सच अ फैक्टर दैट एडिशन, यहाँ क्या है, प्लस मीन्स एडिशन करना है। एडिशन आपका आंसर क्या कैसा होना चाहिए, माइनस। देखो यहाँ आंसर माइनस आना चाहिए, यहाँ आंसर कैसा था, 6 का हमने किया था, एडिशन किया था, लेकिन आंसर प्लस था, बराबर। यहाँ क्या है आपको, 12 हैविंग सच अ फैक्टर दैट आंसर इज -7। तो 12 के फैक्टर कितने हैं, 12 वन ज़ा 12, 6 टू ज़ा 12, 4 थ्री ज़ा 12, राइट। दोनों को प्लस करना है, यहाँ प्लस यानी प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस करना होगा, वो आगे आएगा, देखना। प्लस करना है और आंसर हमको क्या लाना है, -7y। कैसे बोलेंगे, 12 हैविंग सच अ फैक्टर दैट एडिशन इज -7y, दैट एडिशन इज आंसर -7y। तो यहाँ देखो -13y आता है, दोनों को माइनस दे देना है, सेम साइन एडिशन, सेम साइन, या तो दोनों को प्लस दे दो, अगर आंसर प्लस लाना है तो दोनों को प्लस दे दो, आंसर माइनस लाना है दोनों को माइनस दे दो, प्लस करना है, राइट, प्लस किया दोनों का, यहाँ भी दोनों का प्लस किया, 8, बराबर, 4 + 3 7, बराबर। तो कौन सा आंसर, यहाँ माइनस लिखना रह गया, ओके चलो। तो 4 3 ज़ा 12 मीन्स सेम साइन एडिशन, -7y, here -8y, -13y। So which one is suitable? Naturally this one. So this is gone. ये काम नहीं आता है क्योंकि यहाँ आंसर -13 आता है, हमको -7y लाना है, -8y, यहाँ -7y लाना है, माइनस है, तो ये काम नहीं लगेगा, ये लगेगा। तो इसका पार्टीशन हो गया, -7 हो गया, क्या हो गया, -4y -3y, लगा दो यहाँ, y स्क्वायर -4y -3y + 12, है ना, मेक इट 2, कॉमन फैक्टराइजेशन बाय पार्टीशन मेथड। सो y कॉमन, y -4 -3 कॉमन, y -4, सो y -4 एंड y -3, y -4, यहाँ ये ब्रैकेट आपका सेम ही आना चाहिए, अगर ये ब्रैकेट का टर्म बदल गया तो आपका आंसर रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट, z स्क्वायर -4z -12, देखो मैंने बोला ना, अभी देखो यहाँ क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 12 हैविंग सच अ फैक्टर, यहाँ माइनस है, तो 12 हैविंग सच अ फैक्टर दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ आंसर -4z, आपको इसका सब्ट्रैक्शन करना है। चलो तो इसके पहले तो फैक्टर लिख दो, 12 वन ज़ा 12, 4 थ्री ज़ा 12, 6 टू ज़ा 12, ये पॉसिबल फैक्टर लिख दो। चलो यहाँ हमें आंसर सब्ट्रैक्शन करके -4z लाना है, बराबर, आंसर 4z लाना, लेकिन उसकी साइन माइनस होनी चाहिए। चलो 6 में से 4 गया तो 4z, 4 में से 3 गया तो 1z, 12 में से 1 गया तो 11z। नेचुरली ये नहीं काम आएगा, ये नहीं काम आएगा, यही काम आएगा। चलो आंसर क्या लाना है, -4z। तो मैंने आपको सिखाया था 7th में, राइट, कि ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन एंड पुट बिगर साइन इन आंसर, बराबर। तो आंसर में जो साइन है वो बिगर नंबर को दे दो, तो माइनस किसको देंगे, 6 को, ये बिगर नंबर है, और इसको प्लस, तो इसका पार्टीशन हो गया, 6 में से 2 गया तो -4 हो गया। तो ये आप बराबर करो, राइट, साइन वाला, जो आंसर जो साइन में आंसर में जो साइन है वो बिगर नंबर को लगा देने का, तो हो गया। बाकी तो सेम है, z स्क्वायर -6z + 2z -12, पार्टीशन कर दो, यू विल गेट दिस आंसर्स। दूसरा, अभी देखो यही टाइप का सम है, लेकिन यहाँ -4z आंसर लाना था, सब्ट्रैक्शन करना था, वही है, सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन आंसर अभी +4z लाना है, ताकि आपको पता चले, राइट। देखो तो मैंने ऐसे ही मैंने फैक्टर वो पॉसिबल फैक्टर रख दिए, लेकिन यहाँ ये दोनों तो काम नहीं लगेंगे, तो कैंसिल कैंसिल, ये काम लगेगा, लेकिन यहाँ आंसर हमको +4z लाना, यहाँ -4z लाना था, तो माइनस इधर था 6 को, अभी +6 को आएगा, देखो, और इसको माइनस आएगा, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम है, करेक्ट। चलो ये देखो, अभी m² + 2m - 15, 15 हैविंग सच अ फैक्टर दैट सब्ट्रैक्शन वी गेट आंसर +2m। तो 15 के फैक्टर लगा तो 15 वन ज़ा 5 3 ज़ा, बराबर, ये दो ही है फैक्टर। अभी हमको आंसर +2m लाना है, करना है सब्ट्रैक्शन, यानी एक को प्लस और एक को माइनस देना है, किसको प्लस और किसको माइनस,
बराबर। ये 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, यहाँ 15 में से 1 गया तो 14, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, करेक्ट। अभी साइन की बारी, ये प्लस आंसर है तो प्लस लाना, तो प्लस को क्या मैंने क्या बोला था, बिगर नंबर को दे दो, +5 तो यहाँ माइनस, तो एक्स एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m माइनस 15, m will be the common m plus 5 minus 3 will be the common m plus 5, you will get this answer। तो ये ऐसे करना है, करेक्ट। नेक्स्ट 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, करेक्ट। सो 3m स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है देखो, 6 3 18, देखो यहाँ पहले कोएफिशिएंट 1 ही था, लेकिन यहाँ तो आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 18, 18 हैविंग सच अ फैक्टर दैट एडिशन इज +9, तो 18 का फैक्टर 9 2 18, 18 1 18, 6 3 18, इसमें से किसका 9 आता है, इसका, तो ये काम आएगा, ये दोनों काम नहीं आएंगे, राइट, बराबर। और दोनों m लगाना है तो m लगा दो, और करना है एडिशन तो दोनों को प्लस दे दो, क्योंकि आंसर प्लस लाना है, बराबर। बाकी तो हमारी सेम मेथड जो मैंने बोला था वही। ओके, ये अभी दूसरा आइडेंटिटी है वो देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स आपको कैसे याद रखना है, ये भी आया था 7th में, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट यू हैव टू रिमेंबर प्लीज। देखो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर और बीच में साइन प्लस, क्यों, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर तो सेम है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ओके देखो, से फॉर एग्जाम्पल ये x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4x, तो आपको देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटीज लेनी पड़ेगी, इससे आप ऐसे फैक्टराइज करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी a यानी x, b यानी b, प्लस बी स्क्वायर यानी दिस, माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4, लाइक टर्म को देखो आप, ये प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल होगा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपको ऐसे करना है, बराबर। आपको बहुत सी टाइप आएगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो परफेक्ट स्क्वायर का है या इनपरफेक्ट स्क्वायर का है या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप आइडेंटिटी कौन सी यूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म, दिस इज एक्स्ट्रा है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। आपकी जो टेक्स्ट है ना एक्सरसाइज, उसमें ये अलग अलग टाइप के दिए हैं, इसलिए मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इसका यूज आप उसमें कर सकोगे, राइट। वहाँ एक्स वाई दिया है, मैंने यहाँ a और b लिख दिया है, चलो a प्लस बी होल स्क्वायर तो वो आइडेंटिटी यहाँ लिख दो, a माइनस बी होल स्क्वायर वो आइडेंटिटी यहाँ लिख दो, बीच में माइनस है, राइट। तो अभी ब्रैकेट रिलीज करो, जब ब्रैकेट रिलीज करते हैं, फिर से मैं आपको बोलता हूँ, जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन एक्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस एंड प्लस बिकम माइनस। ओके नाउ अभी क्या करो आप देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गॉन, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गॉन, नाउ 2ab प्लस 2ab दैट इज 4ab, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एक्स रेस टू 4 माइनस वाई प्लस जेड रेस टू 4, बराबर। ये कैसे करोगे, यूज आइडेंटिटी, मैंने बोला यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेस टू 4, तो एक्स रेस टू 4 मीन्स एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, वाई प्लस जेड रेस टू 4 मीन्स वाई प्लस जेड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। ओके सो यहाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये पूरा आप समझो, कोई बी स्क्वायर यहाँ कोई एक एक्स स्क्वायर, ये एक्स रेस टू 4 है ये, और ये वाई रेस टू 4 है, तो क्या करो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा वाई प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ये पूरा इधर आएगा, करेक्ट। अभी ये वाई प्लस जेड यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर से उसको फैक्टराइज कर दो, तो एक्स स्क्वायर यूज दिस आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओवर हियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करो, साइन बार माइनस है, बार प्लस है तो घबराने का, लेकिन बार माइनस है तो बी वेरी केयरफुल प्लीज। फिर ब्रैकेट रिलीज करो, बाहर प्लस है तो एज इट इज आएगा, प्लस का प्लस, यहाँ देखो ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, ये देखो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस, करेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ यूजिंग ऑल दीज आइडेंटिटीज यू हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म, बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये देखो रिपीटेड है, आगे हमने किया था, लेकिन देख लो आप क्यों लिया, कि आपको पहचान सको कि भाई ये कौन सी टाइप का है। सो दिस इज विच टाइप, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप है, देखो
है ना। तो ये ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर टाइप है, तो ऐसे करने का ए 16 यानी 4 का स्क्वायर, बराबर। तो ये इधर रख दो, ये इधर रख दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे करते हैं, ये किसका स्क्वायर, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ प्लस बीच में प्लस साइन है तो बीच में प्लस रख दो 2, और ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। इट मीन्स इट इज़ द स्क्वायर ऑफ a प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट। अभी ये देखो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 25, ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप है, तो आप HW में कर सकते हो। फिर थर्ड 4 5 6 ये भी, ये सब परफेक्ट स्क्वायर टाइप के हैं, जो हमने किया है वो आप कर सकते हो। अभी ये देखो एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4LM, तो आप ये है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर से करो इतना, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अभी देखो ये लाइक टर्म है, तो 2LM माइनस 4LM तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, है ना। इसमें से ये माइनस होगा तो 2LM रह जाएगा, बराबर। ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, पुट बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर 4 है, इसका साइन माइनस है, तो ये रह गया। अभी ये देखो कि ये क्या है, ये भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर, अभी अगेन फैक्टराइज होगा तो एल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर, बराबर। बीच में माइनस साइन है तो माइनस रख दो, ये एल और ये एम। इट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर, एल माइनस एम होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। चलो 8 सम a रेज टू 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर टाइप है, यानी ये किसका स्क्वायर है, 4 है मीन्स a स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस साइन रख दो, 2 तो आएगा ही, ये इधर रख दो, ये इधर रख दो, तो आ गया देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस। Question number 2, factorize this 4p square minus 9q square, यहाँ which identity we have to use, a square minus b square, मैंने यहाँ लिखा है use identity a square minus b square, तो वो है a plus b a minus b, तो ये किसका स्क्वायर है वो लगा दो, सो 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q, बस। अगर वो आपको पहचान लिया तो ये सम बहुत इजी है। देखो ये 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर, यहाँ है माइनस तो है, दोनों लेकिन इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप जरा यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो तो ये 63 यानी 9 7 जा 63, 112 यानी मैंने यहाँ फैक्टराइज किया है, अगर नहीं आता है तो ये क्या होगा, 16 7 जा 84 होता है, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 7 जा, तो यहाँ से 7 अगर कॉमन निकलेगा दोनों में से, देखो तो अंदर 9a स्क्वायर, यहाँ 16b स्क्वायर, ये अभी आपका देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो दैट यू हैव टू यूज योर माइंड, ओके। सो 7 विल बी आउट बाय कॉमन फैक्टर, सो इनसाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लगाओ, यानी 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, राइट। 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये परफेक्ट स्क्वायर दोनों है, आ जाएगा। यहाँ 16x रेज टू 5 माइनस 144x क्यूब, यहाँ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये जो वेरिएबल है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर इसमें से एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे तो इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। देखो अभी हो गए 16x स्क्वायर 144, ये 4x का स्क्वायर है, ये 12 का है, ओके। तो ऐसे करते हैं एग्जाम में, ऐसे देते हैं, राइट। सेम सम 9th में भी आएंगे, सेम ऐसे ही सम 10th में भी आएंगे, राइट। 11 में 12 में ये तो चलता ही रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ 5 6 दैट यू हैव टू डू इट बाय होमवर्क। 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो आपको ये देखना है कि ये क्या है, तो ये तो आइडेंटिटीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, किसकी आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर की, तो ये लिख दो माइनस जेड रेज टू 2। चलो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अभी फैक्टराइज होगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर। 8 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। अभी देखो इसमें 25 ए स्क्वायर, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3 आता है, तो यहाँ लेकिन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी माइनस साइन में नहीं आते हैं, तो क्या करो आप माइनस, ये 25 ये तो परफेक्ट प्लस है, तो इसको पहले ले लो, बाद में यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, बराबर। ये देखो बी सी यानी ये टर्म की ही कॉमन मिडल टर्म है, तो माइनस कॉमन ले लो, देन दिस बिकम प्लस, दिस प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, ब्रैकेट रख दिया। तो अभी देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर टाइप फैक्टराइजेशन हो गया,
तो ये 4 यानी 2b का स्क्वायर है, ये 7c का स्क्वायर है, और इसको बीच में रखा, देखो 7 2 14 28 आ गया, बराबर। ये तो एज इट इज रहेगा। अभी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, बराबर। तो ये 25 स्क्वायर यानी इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7। तो देखो अभी यहाँ कौन सी आइडेंटिटी आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये पूरा b है और ये पूरा आपका a है, तो ऐसे समझो a प्लस b यानी कि दिस प्लस दिस ब्रैकेट एंड दिस माइनस दिस ब्रैकेट। चलो बाहर माइनस है तो उसको लीव कर दो, माइनस ये प्लस माइनस, ये माइनस बिकम प्लस। So this is the answer. So like this way you can do, students, right? If you have any problem you can contact me. This question number 3, question number 4 and question number 5, it is a homework for you, and next time we will do next topic. Okay, so till then, goodbye, have a nice day. Thank you.